everyone, my name is Madhu and I welcome you. So kids, many time we have heard that mama gives you milk and said finish your full glass of milk otherwise you don't have energy. मम्मा मिल्क का ग्लास देती है एंड कहती है कि फिनिश करो पूरा मिल्क वरना ताकत नहीं बचेगी. What is this ताकत? ये ताकत क्या है? That is called energy. मिल्क पीने से हमें एनर्जी मिलती है. So have you seen different kinds of work you are able to do in a whole day? Look at here. See, you are walking, you are running, you are jumping, you are skipping, you are climbing a tree. Yes, different kinds of work you are doing in whole day. These are physical activity. So how you able to do these kind of physical activity? Yes, with the help of energy. Whenever you will have meal, you will have food, so that food gives you energy. In this earth, in this whole world, all the living organism, जितने भी living organism है, जितनी भी living चीजें हैं, जिंदा चीजें हैं, they need energy to survive. And how do they get energy? They get energy with food. They have food. वो खाना खाते हैं, वो खाते हैं. Even animals भी. See, have you seen different kinds of cow grazing in the field? Cow घास खाती है. Have you seen lion? Lion hunting करता है. So every living organism need food. Okay kids, I'll give you one example. Have you seen car? When we drive a car, how do a car works? कार काम कैसे करती है? Yes, कार में हम फ्यूल डालते हैं. फ्यूल इन द सेंस पेट्रोल. तो कार चलती है. सेम वे हमारी बॉडी भी ऐसे ही काम करती है. जब हम उसमें फूड देते हैं अपनी बॉडी को और फूड से हमें एनर्जी मिलती है, देन आवर बॉडी विल बी एबल टू वर्क. हमारी बॉडी फिर वर्क करती है. समटाइम हैव यू सीन, आपको बहुत भूख लगी है और आप किसी वजह से खाना नहीं खा पाए या आज आप घर लेट पहुंचे, आपका बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता. यू फील सो लेजी. इवन योर फेवरेट गेम यू डोंट वांट टू प्ले. व्हाई? बिकॉज ऑफ हंगरनेस. आप भूखे हैं, आपको प्यास लगी है. सो इट मीन्स कि आपकी बॉडी को फूड नहीं मिला और आपको एनर्जी नहीं मिली. सो हैव यू अंडरस्टूड why food is important for us, for our body, for all the living organism? So kids, when our body get food, then our body will capable to survive different kinds of physical activity. But you know one more thing, क्या आपको पता है कि जब हमारी बॉडी कोई काम नहीं कर रही होती, suppose we are taking rest, we sit quietly or we are sleeping and we are doing meditation, that time we are not doing any physical activity, but our body need energy. Why? Because of biological process. It occurs in our body whole time, like heartbeat, we are breathing, our food is digesting. For these kind of work our body need energy. So who gives us energy? Food gives us energy. We have variety of food available which we can eat and get energy. You know, only food not gives us energy. There are different kinds of components including in the food. जो हम खाना खाते हैं उसमें different kinds of components होते हैं जिन्हें खाने से हमें एनर्जी मिलती है और वो different components different work करते हैं. So first we talk about different component of foods which gives us energy and why they are important for our body. First of all, we have to know about different components of food. पहले हम ये जानेंगे कि ये फूड में components होते कौन कौन से हैं. At least we should aware about these components. Let's see. Number 1, carbohydrate. Next, protein. Next, fats. Next, vitamins and minerals. Next, water and roughage. See, these are the important components of foods. You have to know about these components. तो ये वो components हैं food के
जो कि हमारे फूड में, हमारे भोजन में अवेलेबल होते हैं और हमें एनर्जी देते हैं या हमारी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll talk about carbohydrate. Carbohydrates provide us energy. कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, हमें एनर्जी, काम करने की ताकत, पावर मिलती है। सो कौन कौन से वो फूड है जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं? लेट्स सी राइस, ब्रेड, chapatis, potatoes. Yes, these kind of foods gives us carbohydrate और carbohydrate gives us energy. Let's talk about protein. Protein help in growth and repair of the body. प्रोटीन जो होता है वो हमें हेल्प करता है हमारी ग्रोथ में। आप टॉल हो रहे हो ना, आपकी ग्रोथ हो रही है और आप कभी कभार गिरते हो, चोट लगती है या ऐसे गिरते हो कि आपकी चोट दिखाई नहीं देती, तो इन सब के रिपेयर के लिए प्रोटीन बहुत हेल्प करता है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी को रिपेयर करता है और हमारी ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट विच काइंड ऑफ फूड गिव्स अस प्रोटीन। सी यस, पल्सेस, तरह तरह की दालें। आपको अपने खाने में दाल डेली खानी चाहिए। नेक्स्ट, यस, सोयाबीन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप डिफरेंट फिशेस, एग, चिकन भी ले सकते हैं। इनमें भी काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फैट्स। देयर आर वन मिथ अबाउट द फैट्स। ज्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए। ओ माय गॉड, ऑयली खाएंगे तो मोटू हो जाएंगे। नो, इट इज नॉट अ फैट, इट्स अ मिथ। आप बच्चे हैं, आप बढ़ते बच्चे हैं, अभी आप बड़े हो रहे हैं। सो यू नीड फैट। फैट हमारी बॉडी में चमक देता है। हमारी बॉडी में अगर फैट कम हो जाएगा, हमारी स्किन डल हो जाएगी। एंड फैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, बट थोड़ी सी टाइम लेता है, थोड़ा सा वक्त लेता है एनर्जी देने में। सो फॉर फैट यू हैव घी, देसी घी खाइए, मक्खन, बटर खाइए। सो इस पनीर में भी फैट होता है, चीज में भी फैट होता है। यू हैव टू इंक्लूड दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स इन योर डाइट। अपने खाने में इन चीजों को जरूर शामिल कीजिए। तो अब आप फैट जरूर लीजिए अपने खाने में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसे कि हिंदी में विटामिन्स बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड बिल्ड इम्यूनिटी। हमें विटामिन्स और मिनरल्स कहाँ से मिलता है? यस, fruits and vegetables. Fresh fruits and vegetables gives us vitamins and minerals. See, every day you have to take fruits and vegetables. So kids, जब हम अपने खाने में vitamins और minerals involve करते हैं vegetables and fruits के थ्रू, तो ये हमारी बॉडी को डिफरेंट बीमारियों से बचाता है। हमें कोई भी बीमारी जल्दी नहीं हो पाती है और हमारी इम्यूनिटी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का मतलब है किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करता है, पावरफुल बनाता है। सो एवरी डे यू टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कंपोनेंट एंड द लास्ट कंपोनेंट। Yes, water and Rafael. Water, yes, it is very important for our body. हमारी बॉडी के लिए वाटर बहुत जरूरी है। Dietary fibers and water is necessary to keep the body clean. फाइबर्स किन में होता है? आपने कॉर्न खाया होगा, भुट्टा, इसमें फाइबर होता है। फ्रूट्स जिसमें रेशे होते हैं, आप क्या करते हैं? जूस निकालते हैं, फाइबर को अलग हटा देते हैं और खाली जूस पी जाते हैं। नो, यू हैव टू टेक फाइबर्स ऑल्सो। फाइबर एक
I'll give you one example. आप घर में देखते होंगे मेड को या ममा को, वो बर्तन जिस चीज़ से क्लीन करती हैं वो थोड़ा रफ सा होता है। वो रफ इसलिए होता है ताकि वो क्लीन कर दे आपकी प्लेट को अच्छे से। सेम वे ये जो फाइबर होता है ये रेशेदार होता है, लगता है रफली सा लगता है, बट जब हम इसको लेते हैं, खाते हैं, ईट करते हैं तो हमारी बॉडी में जाके ये हमारी बॉडी में से डर्ट को क्लीन कर देता है और फ्लश आउट कर देता है। सो वाटर एंड रफेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फूड। हमें अपने खाने में क्या लेना चाहिए? हमें अपने फूड में रफेज ऐसा खाना ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए जिसमें रेशे हो। वी हैव टू टेक सैलड्स, हम सैलड इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसा फ्रूट खा सकते हैं जिसमें काफ़ी मात्रा में रफेज हो। पाइनएप्पल खाइए, पाइनएप्पल में भी होता है। आप भुट्टा खाइए, यू कैन हैव पॉपकॉर्न, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सो किड्स, तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फूड। व्हेन यू अंडरस्टैंड, अब आपको समझ में आ गया कि हमारे कंपोनेंट फूड के इम्पॉर्टेंट क्या हैं और इनका वर्क क्या है एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, और किन किन फूड, वेजिटेबल फ्रूट से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट इट। अब आपको समझ में आएगा कि आखिर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। Now I'm going to tell you about nutrients. Components of food that provide energy is called nutrients. So component of foods क्या थे? Yes, carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, water, roughage, ये सारे क्या हैं? Component of food हैं। So component of food that provide energy is called nutrients. इन्हीं को हम nutrients कहते हैं। Let's talk about nutrition. अब हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। Process of consuming nutrients for the growth and repair of the body is called nutrition. न्यूट्रिशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी अपनी ग्रोथ के लिए और रिपेयर करने के लिए जो हम खाना खाते हैं, फूड के जो कंपोनेंट होते हैं उनको यूज करती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो वो फूड, वो प्लेट जिसमें कि जो हम रोज़ खाते हैं, वो फूड जिसमें ये सारे कंपोनेंट एक प्रॉपर मात्रा में, एक प्रॉपर क्वांटिटी में इंक्लूड होते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ओके, सो किड्स, हम जो भी खाना खाएं, हम जो भी फूड खाएं, दैट शुड बी बैलेंस्ड डाइट। व्हाई आई एम यूजिंग वर्ड बैलेंस्ड डाइट? नाउ you will understood about the meaning of balance. Now we are going to talk about undernutrition. What is undernutrition? Nutrition in insufficient quantity in the diet is called what? Undernutrition. जब हमारी प्लेट का जो खाना है, जो फूड है, उसमें पूरे कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट ना के बराबर हो या बहुत कम हो जाए और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कमी आ जाए, दैट इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। सपोज हम कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं, धीरे धीरे आप चपाती नहीं खाते, आप चावल नहीं खाते हैं। ओके, सो व्हाट हैपन, वन डे आप सोयाबीन नहीं लेते, आपको स्लीपी फील होगा, यू फील सो लेजी, आपको आलस आएगा। सो दैट इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। इसमें आपने खाना तो पूरा पेट भर खाया, बट जो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को चाहिए वो आपने पूरा नहीं दिया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन इन द सेंस excess of quantity, nutrients in excess of quantity is called overnutrition. Overnutrition यानी कि जब आप सारे कंपोनेंट अच्छे से ले रहे हैं पर जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरन्यूट्रिशन। एंड उसके बाद क्या होता है? ओबेसिटी, मोटापा, आप बहुत मोटे हो जाते हैं और ये पूरा खाना डाइजेस्ट करने में योर बॉडी वेस्ट लॉट्स ऑफ एनर्जी। सो इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ना तो अंडर न्यूट्रिशन गुड है, ना ओवर न्यूट्रिशन गुड है। So it is very important that we have to take all the components of the food in a right quantity. So that is called balanced diet.
जिस डाइट में, जिस खाने में हमारे सारे फूड के कंपोनेंट प्रॉपर सही क्वांटिटी में होते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. Okay kids, I hope you all have understood. Now one important thing at the end, that is don't skip your breakfast. एक मिथ होता है कि मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट नहीं करते, सो यू थिंक कि अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा. दैट इज टोटली रॉन्ग. मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. एक तरह से वो आपके माइंड का फूड होता है. पढ़ने वाले बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे हैव टू टेक देयर ब्रेकफास्ट बिफोर 8 o'clock, बिफोर 8 AM. 8 बजे से पहले आपको अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है. ओके, एंड देन यू विल टेक लंच. आप लंच लीजिए 1 बजे तक या 2 बजे तक. एंड आफ्टर दैट इन आफ्टरनून यू कैन हैव योर स्नैक्स. आप ले सकते हैं हेल्दी, आप मिल्क भी ले सकते हैं. एंड एट नाइट बिफोर 9 o'clock, 9 बजे से पहले आपको डिनर लेना है, सोने से 1-2 घंटा पहले. एंड एट लीस्ट 10 to 11 you have to go for your bed. And you will get up early in the morning. So students, I hope you all have understood about the balanced diet, component of foods, and why it is important for our body and for our health. We all depends on food. We all survive for food because food gives us energy for doing different kinds of physical activity and different kinds of work. Eat well and stay healthy. Goodbye everyone.